We're here at the Global Wildlife Fair in New Delhi in India. हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई एम साक्षी एंड मैं यहाँ आज ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर में हूँ, जो कि इंडिया का पहला ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में हो रहा है ये। मैं यहाँ एग्जिबिटर भी हूँ और आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। मैं आपको एक एक्सक्लूसिव टूर देती हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। लेट्स सी। इंडिया विटनेस्ड अ हिस्टोरिक मूवमेंट, the first ever global wildlife fair, a platform where conservation met creativity and nature found its global voice. From every corner of the world, organizations, photographers, filmmakers, bird watchers, and nature lovers gathered here, all united by one passion: wildlife. Countries like Kenya, Colombia, Taiwan, Malaysia, Australia, Argentina, Spain, India, and many others showcase their expertise from ecotourism and wildlife research to sustainable travel and conservation technology. The atmosphere was full of curiosity, exchange, and excitement. New connections were made and new ideas took flight. तो चलिए हम कुछ कंपनीज से मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। Hello, how are you? Let's see. He's from Colombia. How are you? Hi, how are you? Yes, I'm good. What are you representing? I'm representing 3 countries that I work with a lot in my life for more than 24 years. I was born in Colombia and I lived in Ecuador a lot of my life, then in the USA, and then I done a lot of Peru. So now I am comfortable selling these 3 countries that I operate with. Oh, Is this one right here? here. You wanted to see some of the birds? Yeah. So this is a blue-footed booby from Galapagos. Let me see what else we have over here. The long-tailed tyrant. This is more like in the Amazon and in the coast. Let me see what else. This is an endemic of Colombia. No, this is an ant tanager. We have here, just like this bird, we have maroon oriole. Yeah, similar. Similar. This is a quetzal, golden-headed quetzal female. This is a rufous-tailed tyrant. So these shots are by you? Yes, some of them are really old, but the very new nice. ones. Very nice. Yeah. Let me show you like a beautiful, colorful one. Look at this beauty. Mossback tanager, no? Endemic to the western Colombia, western Ecuador. Yep. Very nice. We will move to next, and so nice talking to you. Bye. And thank you so much. Thank you. So now this company is from Spain. Hi, Katrina. Hi. Am I direct? Yeah. How are you feeling? Very nice. Yeah. Very well surprised about the warmth of these people, because I am really having a nice experience here in India. Yeah, you're amazing. So good, so lovely, so glad to. Yeah, thank you. So you do tours in Spain? Yes, mostly in Spain because we are based in Spain. But since I am from Colombia and I started doing birding and bird photography in Colombia, we also operate a lot in Colombia. We do birding, bird photography tours, and then since we are mostly conservation photographers and science communicators, what we do is we take groups with us to very remote destinations, like expedition cruises,
from in the Atlantic Ocean or in the Pacific Ocean. so to interesting. very remote islands, and also to places like Papua New Guinea, for example. Yeah. Oh, very nice, very nice. So these are some of your itineraries. Exactly. Okay. This is our main business, yeah, which is publications, articles, Yeah. and reportage about species conservation and good initiatives around ecotourism also. Oh, very nice. Yeah, we love it. To next, Responsible Tourism Society of India. So, hi sir, what are you representing here? Actually, this is a society. It's a national body supported by the Ministry of Tourism, Government of India. It was in 2008 that it was called the Ecotourism Society of India. From 2020 onwards, the vision broadened Okay. and became the Responsible Tourism Society of India. Okay. Our job is to advocate and create awareness about sustainability and responsible tourism all over India and this country. Okay. We want people in the organized and the unorganized sector, in the tourism as well as in the hospitality sector, to join this movement and be part of the sustainable features that we provide. So, if anyone wants to be a part, You can become a member of Yeah. this society. so what's and, the procedure? The procedure is very simple. You have an application form and you see which criteria you are eligible to, and you just fill it up, and that's it. Oh, so easy. Okay, so nice to talk to you, sir. And yeah, मिलते हैं क्योंकि मिलते हैं। हम 3 दिन यहीं हैं, मिलते रहेंगे. Now this looks something different. Silver Mountain School of Hotel Management, Nepal. So, hi sir. Hello, What's your name? I'm Pranesh and I'm from Kathmandu, Nepal. I'm Silver Mountain School of Hotel Management. Okay. So I am seeing here that everyone is connected to nature or wildlife. Right. So you are into hotel management, like. Right. कैसे differentiate हो गया ये? Well, our school's name is under Hotel Management, but we are basically teaching one of our prime courses is International Hospitality and Tourism Management. Oh, And okay. under this hospitality and tourism management courses, we teach a lot about responsible tourism and a lot about responsible entrepreneurship as well. Since South Asia and most of Asian countries are based on tourism, and that too in wildlife and nature tourism, we feel that our participation here could speak a little bit about how the education world is moving forward in conservation and environment sustainability as well. Yeah, which is So, very important. right, and we're trying to make a point that awareness can also be done through theoretical education as well, and incorporating these kinds of courses in let's say theoretical education would help in producing responsible people who are interested and responsible about nature and environment, and then they could also maybe work towards building better entrepreneurships, and maybe even if they're working in any hotels or any cruise lines anywhere, they always have nature in their mind. So that's what we are talking about here. Oh, very nice, very nice. Thank you very much. सो अभी हमसे मिलने आए हैं मृणाल कौशिक जी हमारे बूथ में. हम फ्रेंड्स भी हैं हैप्पी में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमसे मिलने आए हैं. तो आइए मिलते हैं मृणाल जी से. So, हाय, कैसे हैं? hi, I am fine. How are you? आई एम गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमसे मिलने आए हैं. जी, हमने सुबह ही आपका पोस्ट देखा था, तो हमको ये इवेंट के बारे में तो पता था, लेकिन आप लोग यहाँ हो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं था मेरे को. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस. तो हमने आपका पोस्ट देखा, बस सोचा चलो हाई करके आते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन दिल्ली ओनली. सो कैसा लग रहा है ग्लोबल वाइल्ड? फेयर इज़ एक्सेलेंट एंड बहुत अच्छे लोग और अपने फील्ड के एक्सपर्ट और अल्टीमेट लोग आए हुए, इंक्लूडिंग यू गाइस. आप लोग भी काफ़ी सही कर रहे हो, तो अच्छा लगता है आप लोग को भी देख के यहाँ पे. और भी अब्रॉड नेशन के भी हैं लोग, काफ़ी लोग हैं बाहर से भी. अभी आप क्या कर रहे हैं फिर? अभी हम तो आई एम टू बडिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज़र इन बिहार. तो हम बिहार में पूरा बडिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाते हैं, स्पेशली भागलपुर एंड नियर बाई प्लेसेस. भागलपुर के नियर बाई प्लेसेस में भी बडिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाते हैं.
भागलपुर इज़ होम टू द आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगेटी डॉल्फिन्स। उनके लिए वहाँ पे एक ही सेंचुरी है पूरा इंडिया में, वो भागलपुर में ही है गैंगेटी डॉल्फिन के लिए। हाँ, तो बिहार काफ़ी underrated place है। कम लोग जाते हैं। यस यस यस। बिहार के बारे में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है। पीपल आर नॉट अवेयर। इनफैक्ट ये फैक्ट है कि जो ई बर्ड होता है ना, टॉप 10 ई बर्डर में आउट ऑफ टॉप 10 6 लोगों ने पूरा इंडिया में बर्डिंग किया एक्सेप्ट बिहार। तो ये बहुत पुअर फैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में डाइवर्सिटी नहीं है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ऊपर से क्रॉस करती है बिहार के, तो वो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिच हैबिटेट है वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में भी मिलते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो गुड नंबर ऑफ स्पेसीज इंक्लूडिंग आवर ग्रेटर एड्यूटेंट स्टॉक, जिसका ब्रीडिंग इंडिया में 2 ही जगह होता है, असम एंड भागलपुर। तो भागलपुर इज़ होम टू देम ऑल्सो। एंड वहाँ पे उनका पॉपुलेशन काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ और स्टेबल है, इंक्रीज़ किया हुआ है और स्टेबल भी है काफ़ी। एंड वी हैव ऑल्सो गुड नंबर ऑफ गैंगेटी डॉल्फिन, आवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। वो पूरा इंटायर गंगा में सबसे ज़्यादा डेंसिटी भागलपुर में ही है, बिकॉज इट्स इज़ ए सेंचुरी। तो 60 किलोमीटर का रिवराइन सेंचुरी है। वहाँ पे डॉल्फिन को लेके काफ़ी ज़्यादा वो है अवेयरनेस है, और फिर उसको कंजर्वेशन को लेके काफ़ी एफर्ट डाले हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने भी, और NGOs ने भी काफ़ी काम किया हुआ है डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए। एंड स्टिल मैनी मोर साइट्स लाइक रामसर साइट्स लाइक नागिनट्टी इन जमुई नियर बाय टू भागलपुर, ऑल्सो वी हैव कांवर लेक इन बेगूसराय एंड मैनी मोर प्लेसेस स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। क्या है कि लोगों को एक्सप्लोरेशन का कमी है बिहार में, बर्ड्स की कमी है, तो इस वजह से वो एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। वी ऑल्सो गॉट मैनी रेयर स्पेसीज लाइक बैकाल टेल फाल्केटेड डक इन भागलपुर ओनली। वी ऑल्सो गॉट ग्रेटर स्कॉप इन भागलपुर। सो होपफुली इस सीजन भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक रहेगा एंड इसको नेशन वाइड भागलपुर को पॉपुलराइज करने का मेरा टारगेट है। लेट्स सी क्या क्या कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. और आपका ये वीडियो देख के लोग और बिहार के बारे में जानेंगे और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। थैंक यू। Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सर। Stall looks so beautiful. Wow. What an art. Let's see. What is it? Wildlife Trust of India. Hi. Hi, Sridhar. Yes. So, क्या आप बताना चाहेंगे क्या है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया? So we are a wildlife conservation organization. So we have completed 26 years in conservation now. We are based out in Noida. Our headquarters is in Noida. But we have projects running all across India, straight from Kashmir to Kerala. We have different projects running. If you can see from Kashmir, we have the Markot recovery project and the Hangul recovery project. And in Kerala, we have distinct projects like the Kannur Kandal project, which is related to mangroves, and we have the Vinsha conservation program, and Wayanad conflict mitigation and the Munnar amphibian project. And in between, there are several different species that we are working on, several landscape that we are working on. So if you want to know more about us, you can always visit our website www.wta.org.in. And if you are anywhere in Delhi area, you can always visit our stall in GWF. Okay. It's open till Sunday. Yes, that's about it. थैंक यू सो मच। सो आई एम श्योर आपको सुन के काफ़ी लोग विजिट करने आएंगे। If you visit our stall, you will get a chance to buy Indian Mammals, one of our field guide written by our founder and director Vivek Menon. So we are selling the signed copies. So you'll get a chance to buy that also. सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं महेश जी क्या बेच रहे हैं। खरीद रहे हैं, ओके। क्या खरीद रहे हैं? शर्ट देख रहे हैं, लुक्स गुड, बट मेरे साइज़ की नहीं है। आप लोगों ने भी हमें हमारे साइज़ की नहीं दी। आप लोगों ने भी हमें हमारे साइज़ की नहीं दी, तो आपको भी नहीं मिलेगी। ओके। आपको अपना थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर में शॉपिंग भी चल रही है। लेट्स सी कौन सा ब्रांड है ये? क्लॉवियर। हाय सर, सो आपका नाम सर? मैम मेरा नाम विजय केवलानी है, मैं एज ए सेल्स मैनेजर हूँ क्लॉवियर में। सो ये क्लॉवियर कब स्टार्ट हुआ? मैम ये क्लॉवियर आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुआ, जिनके फाउंडर्स हैं रोहिन जावेरी एंड देवकी जावेरी। ये दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जिनका फ़ोटोग्राफी में काफ़ी शौक था, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में। तो काफ़ी ज़्यादा ये आउटसोर्सिंग मतलब जाते थे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए,
देन सो इन्होंने रियलाइज़ किया कि इनके लिए मतलब कि हम लोग जब वाइल्ड लाइफ में जा रहे थे तो एक अच्छे कपड़े उनके पास नहीं होते थे जो कंफर्ट हो जंगल में जाने के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए। तो तब उन्होंने रियलाइज़ करा, देन इस क्लोवेर ब्रांड को उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से फाउंडेशन किया कि हम लोग ऐसे कपड़े बनाएंगे जो फ़ोटोग्राफर्स या वाइल्ड लाइफ आउटफिटर्स के लिए बहुत बेटर चीज़ बने और अच्छे वाटर रेजिस्टेंस कपड़े और ड्राई फिट मटेरियल के कपड़े जो हैं वो बनाती है कंपनी, ताकि वो फॉरेस्ट में काफ़ी कंफर्टेबल रहे। तो तब से ये क्लोवेर चल रहा है। आज 3 इयर्स प्लस कंप्लीट होने को है कंपनी को, और हमारे पास पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वैरायटीज़ हैं। दूसरा, इंडिया में हम लोग फर्स्ट है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, और यही सेम प्रोडक्ट्स वैसे हमारे कंपटीशन में अगर देखें तो डिकैथलॉन और कोलंबिया ही आते हैं, बट उनसे काफ़ी अच्छी रिलायबल कॉस्ट पे हम लोग यही सेम मटेरियल और सेम वैरायटीज़ को हम प्रोवाइड करा देते हैं। वाओ, वेरी नाइस। सो आप हमें कुछ प्रोडक्ट्स अपने दिखा सकते हैं जो कि स्पेशल हैं आपके? हाँ मैम, जैसे आप सीधा इस रमी पे आ जाइए तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि ये फर्स्ट कैप है जो वाइल्ड लाइफ कैप है। उसके बाद ये बफ्स हैं जो कि आपको डस्ट, और जब भी आप जंगलों में कोई फोटोग्राफर्स होते हैं वो जाते हैं तो उनको डस्ट से बचाती है। ये भी जो है वो कॉटन लाइक्रा के अंदर है, काफ़ी कंफर्टेबल है, 12 महीने आप इसको पहन सकते हैं। उसके बाद ये शर्ट्स आ जाएगी, इस पर हल्की फुल्की डस्ट आ गई, वाटर आ गया तो ईज़िली हाथ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं, जल्दी सूख जाएगा ये कपड़ा। स्लीव्स हो गई, ये भी कॉटन की है, ये भी आपके जो स्किन को कोई एलर्जी नहीं करेगी, बिल्कुल सेफ़ है ये, सन से बचाएगी, सन से भी बचाएगी आपको। और रैशेस वगैरह जैसे जंगल में जाते हो, कुछ पेड़ अड़ गया या कुछ आपको क्रैक्स लग गए तो वो भी बचाएगा आपको उससे। उसके बाद ये बॉटम वेयर आता है। अब बॉटम वेयर में ये होता है कि मान लो कि आप कहीं पानी वाली जगह चले गए और आपका बॉटम वेयर गीला हो गया तो वहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये शॉर्ट्स में कन्वर्ट भी हो जाएगी। तो ये कन्वर्टेबल पैंट है, ये पूरा एक सेट आ जाता है लगभग। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ गई हमारी, कैप, बफ, शर्ट, स्लीव्स एंड बॉटम वेयर। जैसे अगर मैं जानना चाहूँ कि ये पूरे सेट का कॉस्ट क्या है, तो ये पूरे सेट का कॉस्ट अप्रॉक्स 2000, 2000, 4000 अप्रॉक्स, ये 5000 के बिलो आपका ये पूरा कंप्लीट सेट आ जाता है, सब कुछ मिला कर। नाइस। आपका प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। Yes. और मेड इन इंडिया है, सो वी हैव टू प्रमोट इंडियन ब्रांड्स। यस, आवर क्लाइंट्स ये सारे वाइल्ड लाइफ, SOS, वंतारा, सोनी, ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। हमने इनके लिए भी बहुत सारे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाए हैं यहाँ पे। जी, और हमारे जो यूनिक और भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये लैपल पिन्स हैं वाइल्ड लाइफ्स की, ये भी बहुत अच्छी रहती हैं, और ये ईयरिंग्स है वाइल्ड लाइफ की। ओह, जी, earrings। यस। काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने मैन्युफैक्चर। यस मैम, हम और भी इम्प्लीटेशंस कर रहे हैं, और भी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं मार्केट में। विंटर वेयर्स भी आ गए हैं क्लोवेर के। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक नया स्टॉल दिखा मुझे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जीबिटर्स हैं, क्लोथिंग के एग्जीबिटर काफ़ी कम है। मैं कहूँगी शायद आप ही हैं। मोस्टली वाइल्ड लाइफ के जो भी फेयर्स होते हैं वहाँ पे अप्रैल से हम अकेले ही होते हैं हमेशा। अभी हमने सूरत में भी कोई वाइल्ड लाइफ फेयर किया था फोटोग्राफर्स का, वहाँ पे भी हम लोग अप्रैल से अकेले ही आपको थे। रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी प्रोडक्ट्स हमको सेल करने को मिले वहाँ पे, और काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स हमसे जुड़े भी इसके लिए, जिनको कस्टमाइजेशन कराना है, बल्क ऑर्डर्स लेना है, या उनको B2B करना है, वो अपनी कम्युनिटी को हमारे प्रोडक्ट्स लेकर के सेल भी करते हैं इसलिए। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम। This is Burhan Wilderness Camp, Nepal. So, hi ma'am, what's your name? I'm Prabha Gautam. I'm Prabha Gautam from Burhan Wilderness Camps, Bardia, Nepal. Okay. So ma'am, what are you representing here? So I'm representing Burhan Wilderness Camps. We are located in Bardia, Nepal. We are tented camps that's located in the Khata corridor. We're attached to the buffer zone of Bardia National Park. Bardia National Park is very popular for Bengal tigers, Royal Bengal tigers, and one-horned rhinos, wild elephants, and a lot of other wild species, birds. And our camp is a tented camp. It's a temporary setup. It's off the grid project, so we don't have electricity there. It's all solar powered. Experience are raw. Yeah, and it's a river island. We are surrounded by the channels of Karnali River on both the sides.
This belt you can see. So we are currently operating 12 tented camps, as well as we have one tree house. That's a luxury tree house. So we have two types of accommodation as of now, and the activities include jeep jungle safari, river safari, community walk, village walk, a lot of work with the communities, conservation, and experience the authenticity of Bardia. Oh, so nice. Very nice. Thank you. So good to see you, ma'am. Same here. Thank you. Thank you. So excited you are. Did you pick one? Yes, I did. Which one? I think it's red bill, that one. Yeah. The cock of the rock. Yes. Do you know why it's called that? Because it's a cock. Because if you take his furry head off, here, my hair is just like him, but that's not my haircut. My haircut is that guy. That's my haircut. I take that to the hair salon and I say, make it look like this. Exactly. So, this guy's called the cock of the rock because he lives in rocks. Okay. He lives above the rocks. And that's just beautiful. That's just beautiful. I remember taking that picture. Seeing here very beautiful arts and crafts. Let's see. So hi ma'am. Hi. So ma'am, आप कहाँ से हैं? मैं एमपी से हूँ, बस मैं रहती दिल्ली में हूँ. Okay. So आप यहाँ क्या प्रेजेंट कर रहे हैं मैम? So this is काफ़ी beautiful arts हैं. थैंक यू. सो ये मेरा खुद का इनिशिएटिव है वनवासी आदिवासी, जिसमें मैं इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ काम करती हूँ, उनके क्राफ्ट रिवाइवल में काम कर रही हूँ. तो अभी मैं करंटली 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ. वन इज़ रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस पेपर मेकिंग एंड अदर वन इज़ रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस मास्क मेकिंग. सो मैम इनके बारे में आप कुछ बताओगे? क्या पेपर है ये पेपर, इसे मोनशुगु पेपर कहते हैं, और ये मोनपा ट्राइबल कम्युनिटी है, अरुणाचल प्रदेश में बना रही है. हम लोग चुप वैली में काम करते हैं. हमारे साथ दौजी अम्मा हैं जो ये पेपर बनाते हैं, और पूरे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में केवल दौजी अम्मा ही हैं जो ये पेपर बना रहे हैं. और पेपर बनता कैसे है? ये पेपर डेफने पेपरेशिया एक श्रब होता है, एवरग्रीन श्रब होता है, जिससे ये पेपर बनता है. आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं. तो हमारे पास ये बार्क है जिसको ये छीलते हैं और इसको कूटते हैं, इसको सॉफ्ट करते हैं, एंड देन फिर इसका पल्प बना करके एंड देन फिर पेपर बनता है इससे. सो ये 1000 years ओल्ड क्राफ्ट है जिसको हम वापस से रिवाइव किया है, एंड हम इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जिससे कम्युनिटी को एक लाइवलीहुड मिल सके. जिसमें ये हम नेचुरल डाई से, आप देख सकते हैं इसमें, तो ये नेचुरल डाई का हम लोगों ने बनाया है. ये स्क्रीन प्रिंटिंग हमने किया है. ये कुछ इको प्रिंटिंग वाले भी हैं जो हम कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें विंटेज लुक दिया है आपने. हाँ. तो लोगों को भी ये काफ़ी पसंद आता है. तो हम लोग केवल वैल्यू एडिशन कर रहे हैं क्योंकि ये इनका जो इंडिजिनस नॉलेज है, इसमें हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको मार्केटेबल बना सकते हैं जिससे इनको लाइवलीहुड मिले. तो इस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं. अभी आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं? अभी नहीं. अभी ये प्रोजेक्ट हमें करते हुए केवल 2 साल ही हुए हैं, तो अभी हम मार्केट में नहीं. ये हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन है जिसमें हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. ओके, वेरी नाइस. काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव और लिया आपने. ऐसे आइडियाज़ कम ही होते हैं. थैंक यू. तो आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आए? एक्चुअली मैं वाइल्ड लाइफ फील्ड में काफ़ी सालों से हूँ, और मैं काफ़ी ट्रैवल करती रहती हूँ. तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट मुझे काफ़ी पसंद है. तो मुझे ऐसी स्टोरीज जिसमें क्राफ्ट का नेचर से जो कनेक्शन रहता है, वो मतलब
कैसे कनेक्ट है, ये सारी चीज़ें ये मुझे ढूंढना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अभी करती हूँ। हाँ, थैंक यू मैम फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और ये आपकी पूरी टीम है। यस। Every stall told a story of forest, species, and people working behind the scenes for the planet. तो इट्स 5:45 एंड 6 बजे ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर का इवेंट ख़त्म हो रहा है। सो वी आर एवरीवन इज़ पैकिंग अप द थिंग्स एंड वी आर ऑल्सो पैकिंग अप द थिंग्स। श्योर। सो हम भी पैक कर रहे हैं। आज का डे 1 हमारा ऐसे गया। कुछ स्टोरीज हमने कवर करी, कुछ लोगों से मिले, काफ़ी चीज़ें हुई। सो वी आर हैविंग डिनर। We are about to have dinner. Let us show you what's in the dinner. It's a salad and there are peanut sprouts and then that one. Yeah, it looks cool. Yeah. मटर पुलाव, दाल मखनी, पनीर 2 प्याज। So this is West Kofta curry. Looks very nice. The This- color, this look one. at the color. Yellow and red with green and white. Wow, ये कोफ्ता है ना? This is tawa vegetable. So mix kind of. नहीं सॉरी, भरता। Mixed kind of mixed with. दिस इज तवा वेजिटेबल। या वाह, दिस वाज डिलीशियस। This is अभी खाएंगे। chicken and murg. मुर्ग कली मिर्च, And this is butter chicken. बटर चिकन। ओके, Lovely. And सो वी have मूव sweet टू आवर section here. फेवरेट पार्ट, गुलाब जामुन। this is malai pua with rabdi. Yes. ओके, सो Okay, we will start. बहुत भूख लग रही है। Vlog, yes, it is going into YouTube. That's very, India is very nice. so do you want to say anything about Global Wildlife Fair? Yeah, no, the wildlife fair is super fun. You know, it's for me, it's about the energy people are giving, and it's so fascinating to see how far India came, and now sort of like they're leading in wildlife and conservation. So. My big applause and heart to Mohit for providing this platform and for really connecting all the people together and create impact. And that प्लीज़ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और क्वांटम से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।